Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study metals and non-metals. Now let's start the lecture and understand. In the previous lecture we have studied matter, also we have studied the classification of matter. When we were studying the classification of matter at that time, we have also studied metals and non-metals, what in short. In this lecture we will study metals and non-metals in depth, so that if 11 marker question or 5 marker question is asked in the examination, then you would be able to write a beautiful answer, right? For an example, 3 marker question may be asked, define what is metal, right? Define what is non-metal, right? Yeah, give the examples of non-metals, right? 5 marker question may be asked, what are the chemical properties of metals? What are the physical properties of non-metals, right? Or 11 marker question may be asked, right? Define the properties of metals. Also, right? Yeah, what is metal and what are the physical characteristics of metal and what are the chemical characteristics of metal, right? या फिर पूछा जा सकता है कि what is a non-metal, right? Give the example of metals. Also state the physical and chemical properties of non-metals, right? Or this is also possible. What is the difference between metals and non-metals? What is the difference between the physical characteristics of metals and non-metals? या फिर 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आल्सो डिफरेंशिएट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इस तरीके के जो है क्वेश्चंस जो है मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट? सो हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर. See, everything in the universe which is not energy is a matter. In depth, we can say that everything in the universe that has a definite mass, that has definite volume, right, that occupies space and whose state can be transferred through energy and whose existence can be realized by sense organs is called matter. For an example, butter, stone, iron, wood, etc., etc., right? Now we will see the physical classification and chemical classification of matter, right? See, the physical classification, right? The physical classification of matter, right? The physical classification of matter is of 3 types, right? जिसको matter की state भी कहा जाता है. States of matter or physical classification of matter is solid state, right? Solid state, then liquid state, then gaseous state. These states are जो है, ये तीनों जो state हैं वो normal conditions में होती हैं, right? In specific conditions जो है चौथी state भी होती है, right? जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा. एंड 5th stage क्या हो जाएगा, वो आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट हो जाएगा, राइट? तो जो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, राइट, उसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट जो है नॉर्मल कंडीशंस में होती हैं और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो स्टेट्स हैं वो स्पेसिफिक कंडीशंस में होती हैं. नाउ मैटर का अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखें, राइट, तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर इज डिवाइडेड इन मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस. अब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है, राइट? शॉर्ट में समझिए क्योंकि इसको हम डिटेल में वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट? द मैटर, राइट, द मैटर which has same type of particle, राइट? एक ऐसा मैटर या मैटर जिसके पार्टिकल्स एक समान होते हैं, तो द मैटर which has same type of particle is known as pure substance. A pure substance is also classified in element and compound. इन दोनों में अंतर क्या होता है, राइट? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be split up in 2 or more than 2 particles. For an example, here H2O,
राइट, एंड हियर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब देखिए यहां पर एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का वह रूप होता है जिसको हम दो या दो से अधिक छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट नहीं कर सकते, राइट। क्या हाइड्रोजन जो एटम है इसको और स्प्लिट किया जा सकता है? नहीं। परंतु जो कंपाउंड होता है, चूंकि जब, राइट, when two or more than two elements are chemically combined, right, in a proper ratio, then compound is formed, right। और कंपाउंड में भी जो है समान पार्टिकल होते हैं, राइट, जैसे H2O, परंतु कंपाउंड को हम जो है और भी छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को, जो जल है, वाटर है, H2O, इसको हम हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। तो प्योर सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, क्लियर। अब एलिमेंट इज अ form of pure substance which cannot be split off in two or more than two particles, right। अब compound क्या होता है? when two or more than two elements are chemically combined in a proper ratio, then this is known as compound, right। compound again जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो प्रकार का होता है। फिर जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में क्या होती है? मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, और क्या होती हैं? मेटलाइड होती हैं, जिनको हमको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में ही हमने सॉल्यूशन को पढ़ा था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने कोलाइड एंड सस्पेंशन को पढ़ा था, राइट। नाउ वी विल स्टडी मेटल, क्लियर। सो व्हाट इज मेटल? सी, the element which is good conductor of electricity, good conductor of heat, which is malleable, right, which is ductile, right, which has sonority, right, is known as metals। बट यदि 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें यहां पर जो है कम से कम शब्दों में मेटल को डिफाइन करना है। और चूंकि अगर आप इस तरीके से मेटल को डिफाइन करेंगे, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। तो हो सकता है आपको उतने अच्छे मार्क्स ना मिले। जो बेहतर है अगर हम देखें तो द मेटल इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो अगर हम इसको केमिकली डिफाइन करें तो वो मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए मैक्सिमम जो है पॉसिबिलिटी होगी, राइट। तो वी विल सी द केमिकल डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, राइट। तो मेटल की डेफिनेशन अगर हम समझें तो दोज एलिमेंट्स विच टेंड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स इजीली to form a positive ion are known as metals, right। तो यहां पर आप ध्यान ये रखें, राइट, कि वह एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या करता है? गिव अप करता है और पॉजिटिव आयंस को एक्वायर करता है, उसे ही क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और इसमें हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं, राइट, कि जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 3 मार्कर के लिए जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। दोज एलिमेंट्स विच टेंड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, आल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज मेटल, राइट। अब मेटल की वर्तमान में संख्या कितनी है? सो देयर आर 91 मेटल्स। सो जो करंटली नॉन मेटल्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं? 91 हैं। साथ ही साथ जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, राइट। और ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। डिफाइन मेटल, आल्सो डिफाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, राइट। तो हम जो है मेटल की डेफिनेशन देख चुके हैं, right। Those elements which tend to give off electrons easily to form positive ion are called metals, right। Now we will see the physical properties of metals, जिसमें पहले क्या हो जाएगी? मेटेलिक लस्टर और मेटेलिक क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। मेटल्स आर लस्ट्रस इन देयर प्योर फॉर्म, या हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो है मेटेलिक लस्टर या क्या हो जाएगा? मेटेलिक साइन हो जाएगा, right। So the element which has metallic luster or metallic sign is known as metal, right।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेटल्स पर सन रेस पड़ती हैं तो उसकी साइन ही क्या होती है, साइन जो है मेटल्स जो है रेस में जो है साइन करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगा। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट इसका एक्सेप्शन भी है और इसके लिए आपको दो फैक्ट भी याद रखना है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, मेटल्स हैज मेटेलिक क्लस्टर। सेकेंड क्या हो जाएगा, हार्डनेस। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, परंतु हर एक मेटल की जो हार्डनेस होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एन एग्जाम्पल जो अल्कलाइन मेटल्स होती हैं, राइट, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। जनरली मेटल्स आर हार्ड बट एल्कलाइन मेटल्स आर सॉफ्ट, राइट। और अगर हम देखें तो लिथियम, सोडियम एंड क्या हो जाएगा, पोटेशियम, राइट। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विच आर एल्कलाइन मेटल्स आर सो सॉफ्ट विच कैन बी कट विद अ नाइफ, राइट। तो इनको चाकू से काटा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और याद रखना, वो ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो मरकुरी होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, मेलेबिलिटी हो जाएगी, राइट। मेलेबिलिटी से क्या तात्पर्य है, राइट, यू टेक अ एलिमेंट, राइट, यदि आप उसको उस पर हिट करेंगे, राइट, और अगर वो छोटे छोटे पीसेस में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो मेलेबल नहीं होगा। लेकिन मेटल्स क्या होती हैं, मेलेबल होती हैं, या देयर इज अ मेलेबिलिटी इन द मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेटल्स को हिट किया जाता है या मेटल्स को पीटा जाता है, व्हेन मेटल्स आर बीटन, राइट, तो वो छोटी छोटी जो है सीड्स में जो है परिवर्तित हो जाती है, राइट, छोटे छोटे पीसेस में नहीं टूटती हैं। क्लियर? एंड दिस इज नोन एज मेलेबिलिटी। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, राइट। यू टेक अ पीस ऑफ गोल्ड एंड हिट अगेन एंड अगेन, राइट। तो यहां पर जब आप अगेन एंड अगेन मेटल्स को हिट करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटेगा, बल्कि इसकी जो है एक थिन फॉइल है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, राइट। सो दिस इज नोन एज मेलेबिलिटी। फोर्थ क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी हो जाएगा, राइट। व्हेन वी पुल अ एलिमेंट, और यदि उसको पुल करने पर वह वायर में कन्वर्ट हो जाए, राइट, यदि वह टूटे ना दो पीसेस में, वायर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, राइट। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी पुल्ड इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी एंड मेटल्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें गोल्ड को, राइट, सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, राइट। A 1 gram of gold can be used to make wire of क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर लॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्या आपने कभी सोचा है कि why is the ornaments are made up of gold, राइट। उसका there are 3 reasons। सबसे पहले क्या हो जाएगी कि गोल्ड की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, राइट। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। इसीलिए लॉन्ग रन में अगर हम जो है 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स तक भी अगर उस ऑर्नामेंट को पहनते हैं तो ये आसानी से ऑक्सीजन या वाटर के साथ में जो है रिएक्ट नहीं करता। तो गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, देयरफॉर इसकी जो मेटेलिक साइन है वो है कम नहीं होती है। दूसरी चीज, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलेबल मेटल। यही कारण है कि मेटल्स को जो है बहुत ही जो है थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो है थिन फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, अर्थात मेटल्स से हम जो है बारीक नक्काशी कर सकते हैं। और इसी वजह से जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी जो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं माइन्यूट जो डिजाइंस होती हैं, माइन्यूट डिजाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू गोल्ड, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस जो मैक्सिमम ऑर्नामेंट्स हैं वो किसके बनाए जाते हैं, गोल्ड के बनाए जाते हैं, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएंगी, मेटल्स हैव मेटेलिक क्लस्टर, देन मेटल्स जनरली आर हार्ड, बट इसके ये 3 आप याद रखें, लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम, ये एल्कलाइन मेटल होती हैं जो कि इतनी सॉफ्ट होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। देन मेलेबिलिटी एंड फोर्थ डक्टिलिटी। देन फिफ्थ हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी एंड
इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा, राइट। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से भी अगर हम देखें तो सिल्वर जो है, सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, राइट। तो सिल्वर की जो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन कॉपर हो जाएगा, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम, देन क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, राइट। यू हैव हियर दैट जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट, कॉपर वायर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, व्हाई, राइट। सी सिल्वर जो है ये एक तो कॉस्टली होता है, साथ ही साथ ये एक तो क्या होता है, कॉस्टली होता है, और दूसरी चीज ये है कि इसकी स्कार्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो चूंकि ये कॉस्टली होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट इज क्या हो जाएगा, सोनरस, राइट। जब कभी भी मेटल्स को हिट किया जाए तो वो बेल लाइक जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, which means we can say that metals are sonorous, right? So these are the physical properties of metals. तो metals की physical properties में सबसे पहला क्या हो जाएगा, metals are lustrous, right? So metals are lustrous, अर्थात metals जो है शाइन करती हैं। सेकेंड, metals जो है हार्ड होती हैं। थर्ड, मेटल्स आर मेलेबल, राइट, अर्थात उनको पीटा जाए तो वो चादरों में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, उनको लंबे वायर में जो कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड मेटल्स आर सोनरस। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, लेड हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, राइट। देन प्लेटिनम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, वेरियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर आप मरकरी का याद रखें, मरकरी इज अ मेटल, राइट, विच इज इन लिक्विड स्टेट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, राइट। चलिए, नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, राइट। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद रखना है। जनरली ये हम प्री एग्जाम के लिए या किसी दूसरे एग्जाम के लिए इनको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, सो बी रेडी फॉर दैट। सो नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि व्हेन जो मेटल है, व्हेन मेटल comes to contact with air, water or our other substance, other metal or non metal, तो वह कैसे रिएक्ट करती है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्या कहा जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, राइट। when metals are come in contact with air or we can say that oxygen, तो क्या होता है, मेटल्स फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स, राइट। तो ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा याद रखना है, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स, राइट। सो मेटल प्लस का ऑक्सीजन, राइट। और आपको पता ही होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हम उनको इस तरीके से दर्शाते हैं, राइट। सो व्हेन मेटल कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो है मेटल ऑक्साइड जो है फॉर्म होता है, राइट। वी कैन हैव एग्जांपल, राइट। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, राइट। सो जब कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, राइट। और इसी की वजह से जो है कॉपर की शाइनिंग चली जाती है, राइट। और जैसे अगर हम देखें तो चांदी है, सिल्वर भी जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, राइट, तो उस पर जो है ब्लैक जो लेयर जो है इकट्ठी हो जाती है, राइट। तो जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, राइट, तो कॉपर ऑक्साइड जो है फॉर्म होता है। वैसे जब एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्म होता है, राइट। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, in the examination when you are going to write a particular reaction, then right, वो रिएक्शन जो है वो उस रिएक्शंस में ये जो जितने भी जैसे 2Cu+ का O2 है, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
CuO हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये हो जाएगा रिएक्टेंट फर्स्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट सेकंड हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जितने भी एटम्स रिएक्टेंट्स के हैं उतने ही एटम्स किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए, राइट। इसीलिए जब कभी भी आप अगर आपको जो कोई भी केमिकल रिएक्शन, राइट, कोई भी केमिकल जो है रिएक्शन आपको यदि अच्छे से याद है तभी आप उसको एग्जाम में लिखें, अदरवाइज आपकी जो मिस्टेक है वो इजीली जो है एग्जामिनर के द्वारा कैच की जा सकती है और आपके मार्क्स कट सकते हैं, राइट। तो 4Al प्लस का क्या हो जाएगा 3A3O2, तो 2Al2O3 हो जाएगा, जिसको एल्यूमिनियम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। तो सिंपल याद रखना है, राइट, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। कैसे होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चूंकि एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड, अब यहां से आपको ये 3 मार्कर के लिए भी याद रखना है, राइट। जैसे अगर 3 मार्कर में पूछ लिया जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हम सीधा सा पहला तो यही उत्तर लिखेंगे, राइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज जिसको हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोर्स बोथ एसिडिक एंड क्या हो जाएगा, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दोनों को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है, राइट। तो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो उनका नेचर बेसिक से होता है, परंतु सम मेटल ऑक्साइड्स फॉर एन एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार का होता है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, क्लियर। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनसोल्यूबल होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, साथ ही साथ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, राइट। साथ ही साथ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। फॉर एन एग्जांपल सम मेटल्स लाइक, जैसे क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा और सोडियम हो जाएगा। तो पोटेशियम एंड सोडियम ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ में बहुत जल्दी क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, राइट। एंड इफ पोटेशियम और स्पेशली अगर हम यहां पर बात करते हैं सोडियम, राइट, इफ सोडियम इज कैप्ड इन अ एयर, तो ये इतनी स्पीड से रिएक्ट करता है कि इट मे कैच द फायर, देयरफॉर सोडियम इज कैप्ड, राइट, कैप्ड इन द केरोसिन ऑयल, राइट। तो इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये जो है फायर को कैच ना करे। सेकेंड क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ वाटर। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका है, मेटल प्लस का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ में क्या क्रिया करती हैं, सी मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल ऑक्साइड, राइट। तो ये यहां पर याद रखें कि यहां पर जो है क्या कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही, राइट। सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर देन एक तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। आप याद रखें कि व्हेन मेटल्स कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, और जब मेटल्स वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो मेटल ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, राइट। इसके साथ ही जो मेटेलिक ऑक्साइड है, जब मेटेलिक ऑक्साइड जो है वाटर के कांटेक्ट में आता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है, राइट। यहां पर भी हम कुछ फैक्ट्स को समझते हैं, राइट। जैसे मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट रैपिडली विद द कोल्ड वाटर, तो ये क्या है, कोल्ड वाटर से बहुत ही जल्दी क्या करती हैं, रैपिडली रिएक्ट करती हैं, राइट। और ये जो प्रोसेस होती है, दिस रिएक्शन इज रैपिड एंड क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अर्थात इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। नाउ हियर एग्जांपल, राइट, 2K प्लस का क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। तो
KOH हो जाएगा, राइट। और साथ ही साथ ये कौन सी गैस बन रही है, H2 गैस बन रही है, प्लस का क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, देयरफॉर ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, साथ ही साथ थर्मल एनर्जी भी रिलीज होगी। फिर सोडियम हो जाएगा, राइट। सो 2 सोडियम 2 Na प्लस का 2 H2O, तो उससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 NaOH, देन हाइड्रोजन गैस, एंड क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी रिलीज होगी, राइट। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर कुछ जो है फैक्ट्स पर नजर डालें तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो जो मैग्नीशियम मेटल है वो हॉट वाटर के साथ में, यहाँ पर अगर हम देखें तो पोटेशियम एंड सोडियम जो है कोल्ड वाटर के साथ में रैपिडली रिएक्ट करती हैं, वहीं जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है एंड हाइड्रोजन गैस बनती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट। साथ ही साथ मेटल सच एज क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट ओनली विद द स्टीम टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, राइट। तो यहां पर स्टीम के साथ में क्रिया करते हैं। साथ ही साथ जो मेटल्स लाइक क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, राइट। तो यहां पर अगर 5 नंबर में भी पूछा जाए, right, a 5 marker question is asked in the examination, right, how the metals react with क्या हो जाएगा, water, how the metals react with water, this if this question is asked in the examination then you can write, right, when metals react with water या when metals come in contact with water then metallic oxide एंड हाइड्रोजन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ में कंबाइन होता है या रिएक्ट करता है तो मेटल जो हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके बाद में आप जो है 4 पॉइंट्स को याद रखते हैं, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ऐसी मेटल्स हो जाएंगे जो कि कोल्ड वाटर के साथ में जो है कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, राइट। वहीं जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, then aluminium, iron and zinc, right, these react with steam, right। ना तो ये जो है एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट के साथ में ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड गिव मेटल ऑक्साइड एंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। और मैंने आपको बताया था भी कि गोल्ड इज अ मेटल, राइट, जो कि नॉन रिएक्टिव होती है, अर्थात इट गोल्ड डज नॉट रिएक्ट इजीली विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट। देयरफॉर जो गोल्ड की साइन है वो बहुत लंबे समय तक जो है बनी रहती है। देन थर्ड हो जाएगा रिएक्शन विथ क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, राइट। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म्स एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड तो उससे सॉल्ट जो है प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, राइट। सी इसके भी हम यहां पर जो है एक एक्सेप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इमिटेड इन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड, राइट। तो जब मेटल्स की नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। व्हाई, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर इसका एक एक्सेप्शन और हो जाएगा, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद क्या हो जाएगा, डाइल्यूट HCl हो जाएगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इमीडिएट विद, जब मेटल्स का रिएक्शन किससे होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ में होता है, और दूसरा जो कॉपर है, राइट, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद क्या हो जाएगा, डाइल्यूट HCl। क्लियर। नाउ फोर्थ, रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, अदर मेटल सॉल्ट्स हो जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें, सो अ रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन, और क्या हो जाएगा, मोल्टन स्टेट हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया कि एक कंपाउंड है या एक सॉल्यूशन है, राइट, तो उस सॉल्यूशन में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी, जिसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मेटल A प्लस का सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल B हो जाएगा। तो ये
ए क्या कर देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन को रिप्लेस कर देगा, अर्थात सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल ए हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या तात्पर्य हुआ, सी इसका मतलब ये हुआ इफ मेटल ए इज डिस्प्लेस्ड मेटल वी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो उसका तात्पर्य होगा कि ए इज मोर रिएक्टिव देन क्या हो जाएगा, मेटल वी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी रिएक्शन विद क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स, राइट। सो देखिए मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ में क्या क्रिया होती है वो समझते हैं। सो मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स एंड फॉर्म वेरियस क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करती हैं और वेरियस कंपाउंड को क्या करती हैं, फॉर्म करते हैं, राइट। अगर हम देखें एक केमिकल रिएक्शन में जो है मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, सो हम इसको डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, मेटल्स टेंड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहां पर पॉजिटिव आयंस आना चाहिए, राइट। मेटल्स टेंड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर पॉजिटिव आयंस इन केमिकल रिएक्शंस, राइट। नाउ वी विल स्टडी नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, डेफिनेशंस हो जाएगी, राइट। सो एलिमेंट्स विच टेंड्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स, राइट। तो हमने अभी यहाँ पर मेटल की टेंडेंसी जानी थी केमिकल रिएक्शन में, मेटल्स टेंड्स टू, राइट, मेटल्स टेंड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर पॉजिटिव आयरन, राइट, इन केमिकल रिएक्शन। वहीं अगर हम केमिकली जो है नॉन मेटल्स की डेफिनेशन देखें, राइट, सो एलिमेंट्स विच टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स नेगेटिव आयंस आर नोन एज नॉन मेटल्स। सो दिस इज द डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सॉरी, एलिमेंट्स विच टेंड्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। और वहीं जो नॉन मेटल्स हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं, वेड कंडक्टर होती हैं। द नंबर ऑफ मेटल्स करेंटली नोन आर 22, राइट। इसमें से भी अगर हम देखें तो जो मेटल्स हैं नॉर्मली अगर हम देखें तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बट जो मर्क्यूरी है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, राइट। परंतु अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है सॉलिड, लिक्विड के साथ साथ गैसियस स्टेट, अर्थात ये जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एज वेल एज गैसियस स्टेट, राइट। नाउ वी विल सी द physical properties and chemical properties of non-metals. Firstly, we will see the examples of non-metals, right? Then we will see the physical properties of non-metals, right? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गैसियस, राइट, मेटल्स जो कि गैसियस स्टेट में है, राइट। तो मेटल्स विच आर इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, जिनोन, हीलियम एंड क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। लिक्विड स्टेट में कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। रिमेंबर, राइट, मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज फाउंड एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड स्टेट। वहीं ब्रोमाइन, राइट, bromine is a non metal which is found in liquid state at a normal room temperature। तो वहीं मेटल्स जो कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, राइट, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। नाउ वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मेटेलिक लस्टर, राइट। जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, राइट, लेकिन इसका एक क्या होता है, एक्सेप्शन है, जो कि क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्टरस, अर्थात इनमें शाइनिंग नहीं पाई जाती है, बट आयोडीन विच इज अ नॉन मेटल इज लस्टरस, राइट। आयोडीन जब लाइट में आता है तो वह शाइन करता है, तो ये आयोडीन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, राइट। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप समझिए नॉन मेटल्स जो कि गैसियस स्टेट में या जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और आपको पता होगा कि गैसियस स्टेज हो या लिक्विड स्टेज हो, इसमें पार्टिकल्स जो हैं फार्थर
होते हैं, अर्थात इनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है कम से कम एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। देयरफॉर ऐसी मेटल्स जो कि लिक्विड या गैसियस स्टेट में होती हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। परंतु अगर यहाँ पर हम देखें तो डायमंड और जो ग्रेफाइट है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एक्सेप्शन, राइट। जो डायमंड और ग्रेफाइट है इनके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, राइट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट इसका भी एक एक्सेप्शन मिल जाएगा, और वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डायमंड। डायमंड इज अ नॉन मेटल, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर, और वी कैन से दैट बैड कंडक्टर, राइट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बट यहां पर अगर हम देखें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, विच इज अ एलोट्रोप ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, राइट। देयरफॉर ग्रेफाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, राइट। नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स हो जाएगा, राइट। तो अब अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगा, जो नॉन मेटेलिक्स होती हैं, राइट, वो ऑक्सीजन से जब क्रिया करती हैं तो एसिडिक और क्या होती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स को क्या करती हैं, बनाती हैं, राइट। हमने देखा था कि वेन, राइट, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती हैं तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और उन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स है, वेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म ऑक्साइड्स, और जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिटिक होता है, या न्यूट्रल क्या होता है, ऑक्साइड्स होता है, राइट। तो नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, राइट। सेकेंड, दूसरा क्या हो जाएगा कि जो नॉन मेटल्स होती हैं, राइट, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, राइट, ये हमने दूसरा पढ़ा था, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस का हाइड्रोजन, राइट। परंतु यहां पर जब देखिए, जब आप अंतर करेंगे ना, डिफरेंस करेंगे, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट, इजीली यू कैन डिफरेंशिएट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी आपको डिफरेंशिएट करना, तो आप याद रखें, क्लियर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती हैं तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, राइट। परंतु व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, परंतु ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जबकि मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करती हैं और करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, राइट। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, राइट। तो हमने ये भी देखा था कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, राइट, फॉर्म्स सॉल्ट्स, राइट, तो क्या बनाती हैं, सॉल्ट्स बनाती हैं, राइट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। तो यहां पर नॉन मेटल्स ना तो वाटर के साथ में ना ही डाइल्यूट जो एसिड है दोनों के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं, राइट। जो नॉन मेटल्स हैं वो किन के साथ में रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं वो समझते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्या हो जाएगा, हेलोजेंस हो जाएगा, टू फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स हो जाएगा। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड हो जाएगा, एंड मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट क्या हो जाएगा, हाइड्राइड्स हो जाएगा, right? So these are the chemical properties of non-metals. Now we will see what are the metalloids, right? See, those elements which shows the properties of both metals and non-metals are known as metalloids, right? तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल और नॉन मेटल्स के दोनों की जो है प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उनको ही क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। कैसे, देखिए, मेटलाइट्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर, बट व्हेन इम्प्योरिटीज आर इंक्लूडेड, राइट, डोपिंग के माध्यम से जब इम्प्योरिटीज
इनमें मिलाई जाती है या फिर टेम्परेचर को रेज किया जाए या इंक्रीज किया जाए तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी इनमें से होकर फ्लो होने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, एट अ नॉर्मल टेम्परेचर मेटलाइट्स बिहेव लाइक non-metals, but when temperature is increased then metallites behave as a metals, right? तो बहुत ही सिंपल है कि those elements which shows the properties of both metals and non-metals are called as metallites, right? जनरली जो है metals हैं, जनरली जो मेटोलाइट्स होते हैं वो वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट डोपिंग के माध्यम से व्हेन इम्प्योरिटीज आर एडेड और टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो जो मेटोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो मेटोलाइट्स हैं इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में रखा गया है और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलेनियम, एक्टिनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। नाउ वी विल सी द नोबल मेटल्स, राइट। ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो नोबल मेटल्स क्या होती है, उनकी डेफिनेशन देखते हैं। द नोबल मेटल्स और राज मेटल्स are those metals which in spite of being exposed to moist air, right, undergo very little corrosion and oxidation, right। तो सीधी सी बात है, right, those metals, right। तो the noble metals और राज मेटल्स, राइट, नोबल मेटल्स और राज मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं जिनको मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया जाए तो वो लिटिल कोरोजन या लिटिल जो है ऑक्साइडेशन की जो है क्रिया होती है तो उनको ही क्या कहा जाता है, नोबल मेटल्स कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, गोल्ड एवं क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। अगेन आई टोल्ड यू कि गोल्ड जो है वो नॉन रिएक्टिव होती है, नोबल मेटल होती है, राइट। और गोल्ड जो है इजीली मॉइस्ट एयर के साथ में या वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। देयरफॉर जो गोल्ड की शाइनिंग है वो लंबे समय तक जो है बरकरार रहती है। देयरफॉर गोल्ड इज यूज्ड एज ज्वेलरी, राइट, इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। नाउ हो जाएगा कोरोजन हो जाएगा, राइट। कोरोजन क्या हो जाएगा कि देखिए व्हेन मेटल और नॉन मेटल, राइट, स्पेशली मेटल्स जब मॉइस्ट एयर या सराउंडिंग में एक्सपोज होती हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम होने लगती हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है, राइट। व्हेन अ मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स सराउंडिंग्स, फॉर एन एग्जांपल एसिड, ह्यूमिडिटी, मॉइस्ट एयर, इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टीज व्हिच मींस दैट इट गेट्स कोरोसिव। तो उसको ही क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। सो व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स सराउंडिंग, एसिड, ह्यूमिडिटी, इट loses its properties which means that it gets corrosive. This is known as corrosion. For an example, जो कार्स हो जाएंगे, क्योंकि कार्स की जो बॉडी होती है वो आयरन की बनी होती है, आयरन रेलिंग हो जाएंगे, ब्रिजेस हो जाएंगे, शिप्स हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, राइट, जो कि किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, राइट। वो कोरोजन की वजह से क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। साथ ही साथ कोरोजन शॉर्टन्स द लाइफ ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। चाहे वो बाइक हो, कार हो या आयरन की रेलिंग हो, राइट। अगर उनको मॉइस्ट एयर में, ह्यूमिडिटी में या सराउंडिंग्स में यदि वो एक्सपोज हो जाएंगी, राइट, तो उनका कोरोजन होता है और जिस वजह से उनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, शॉर्टन्स हो जाती है। और शॉर्टन्स लाइफ होगी तो उनकी यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स डेट्रियोरेट क्विकली ड्यू टू कोरोजन, राइट। इसी वजह से जो मेटल्स होती हैं उनको पॉलिश किया जाता है, राइट। सो नाउ वी विल सी द प्रोटेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, ह्यूमिडिटी, सराउंडिंग्स, सो डेफिनेटली उनका कोरोजन होगा, बट इस कोरोजन को रोका जा सकता है कैसे, राइट। फर्स्ट क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा, राइट। कोई भी आयरन इक्विपमेंट है या मेटल का बना हुआ इक्विपमेंट है, दैट शुड बी पेंटेड, राइट। तो पेंटिंग की वजह से उस मेटल के ऊपर लेयर आ जाएगी जिससे वाटर या एयर
के साथ में रिएक्शन कम होगा, राइट, या फिर उस पर ऑयल अप्लाई किया जाए, राइट, या अप्लाइंग अ लेयर ऑफ ग्रीस, राइट। तो कोई भी मेटल का जो भी इक्विपमेंट है यदि उसको पेंट कर दिया जाए, ऑयल की लेयर चढ़ा दी जाए या ग्रीस की लेयर जो है अप्लाई की जाए, तो उससे वह जो इक्विपमेंट है वो डायरेक्टली जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, उसकी वजह से कोरोशन नहीं होगा। या दूसरा क्या हो जाएगा, एनोडाइजेशन हो जाएगा, उसको अगर हम उसको क्या बना दें, एनोड बना दें, या फिर क्या हो जाएगा, क्रोमियम कोटिंग हो जाएगा, और फोर्थ हो जाएगा एलॉइंग हो जाएगा, राइट। तो एलॉइंग क्या होता है उसको हम आगे जाकर अभी समझते हैं। अगला क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा, राइट। तो कोटिंग ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील फ्रॉम कोरोजन, राइट, और उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन, राइट। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच आयरन एंड स्टील, राइट, आयरन और स्टील को प्रोटेक्ट किया जाता है, किससे, कोरोजन से। और गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, राइट, इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ जिंक, राइट, जो जिंक की कोटिंग है वो आयरन या स्टील के ऊपर की जाती है। देन क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा। इफ एनी वन मेटल इज एलॉय, इफ वन मेटल इज द एलॉय ऑफ मर्कुरी, तो जब मर्कुरी के साथ में किसी मेटल का एलॉय बनाया जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है, राइट। बट यहां पर आप याद रखें कि आयरन डज नॉट एलॉय विद कॉपर, राइट, हेंस जो आयरन है वो अमलगम को फॉर्म नहीं करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अमलगम ऑफ जो सिल्वर है, राइट, एंड मर्क्यूरी है, इज यूज टू फिल द कैविटी ऑफ द, क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। ये एक बेसिक क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल सी एलॉय और एलॉइंग क्या होता है। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो मेटल्स होती हैं, राइट, मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डक्टिलिटी हो जाएगा, राइट, मेलेबिलिटी हो जाएगा, राइट, या कंडक्टिविटी हो जाएगा, या मेटेलिक लस्टर हो जाएगी, राइट। तो हर एक मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, परंतु कुछ जो मेटल्स होती हैं वो जब रिएक्ट करती हैं तो उनका कोरोजन भी होता है। इसीलिए मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगा, मेटल को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इंक्रीज करने के लिए जब दो या दो से अधिक मेटल्स को किसी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है मिलाया जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, एलॉय कहा जाता है। तो एलॉय इज अ मिक्सचर, राइट। सो इसको हम सीधा डिफाइन कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज, right, in order to protect the metals or in order to improve the properties of metal, the parent metal is brought to molten state, right, and another element or another metal is also brought to molten state, then it mixed and cooled it at a room temperature, then जो resulting mixture होता है उसको क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, and this process is known as alloying कहा जाता है। एलॉय में जो मेटल्स होती हैं वो एक फिक्स क्या होती है, प्रोपोर्शन में ही होती हैं, राइट। और साथ ही साथ एलॉयस में जो सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन मेटल्स की होती हैं, और साथ ही साथ कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। अब एलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहला क्या हो जाएगी कि हमने देखा कि मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, राइट। और अगर हमें ऑड मेटल्स को हार्डर करना है तो उसके लिए एलॉय जो है हम बना सकते हैं। सो एलॉयज आर ऑफन हार्डर देन, राइट। सो मेटल्स आर ऑफन हार्डर देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा। इसलिए एलॉय से हम जो है स्ट्रॉन्ग या हार्ड यूटेंसिल्स या जो भी प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, एलॉयज आर कोरोशन, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे आयरन है, राइट, अब आयरन को प्रोटेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए स्टेनलेस क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, राइट, तो जिसका प्रयोग हम बहुत जगह पर करते हैं। तो एलॉयज आर कोरोशन क्या होती है, रेजिस्टेंस होती हैं, जिसकी वजह से उनका यूटिलाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। साथ ही साथ जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है कि प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी क्या होता है, कम होता है। इस तरीके से कई प्रॉपर्टीज जो हैं इंक्रीज हो जाती हैं। इसलिए मेटल्स
को मिक्स करके एलॉय बनाए जाते हैं जिनसे डिफरेंट जो है जिनके यूसेज होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एलॉय के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। सो हियर आर द नेम ऑफ एलॉय, देन उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उसका यूज क्या है, राइट। हो सकता है कि 3 मार्कर में गन मेटल के बारे में पूछा जा सके, राइट। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे गन मेटल इज अ एलॉय ऑफ, किसका एलॉय है वो और उसका यूज क्या है। तो हमको जो है 3 नंबर के लिए पूरा जो तैयार हो जाएगा। सो वी विल स्टडी हियर। देखिए एलॉय बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर I have selected those alloy which are important and which can be asked in the examination, right। तो पहला क्या हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा, राइट। सो ब्रास इज अ एलॉय, ब्रास इज अ एलॉय ऑफ क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा एंड जिंक हो जाएगा, राइट। तो ब्रास, कॉपर एंड जेडन, जिसमें से Cu 70% होता है और जिंक 30% हो जाता है, एंड ब्रास इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स। सेकेंड क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा, राइट। तो ब्रॉन्ज में Cu, ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ Cu एंड टिन, Sn, जिसमें Cu जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो 90% होता है एंड टिन 10% होता है, एंड ब्रॉन्ज इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स एंड यूटेंसिल्स, राइट। देन हो जाएगा गन मेटल, गन मेटल इज अ एलॉय ऑफ Cu, कॉपर, जिंक एंड क्या हो जाएगा, टिंक हो जाएगा टिन हो जाएगा, राइट। एंड इन दिस एलॉय यहां पर 90% कॉपर होता है, 2% जिंक होता है, 8% टिन होता है, और इससे कैनन्स जो तोप हैं और गियर मेकिंग ऑफ द व्हीकल्स जो हैं इसमें इनका यूज होता है। देन हो जाएगा डच मेटल, डच मेटल इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, राइट। इसमें कॉपर 80% होता है, जिंक 20% होता है, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग चीप ज्वेलरी हो जाएगा। देन सोल्डर हो जाएगा, राइट। सोल्डर इज एलॉय ऑफ टिन एंड क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, एंड इसमें 67% क्या होता है, टिन होता है, एंड लेड कितना होता है, 33% होता है, और इसका सोल्डरिंग में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जो सोल्डरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, ड्यूरेलुमिन हो जाएगा, जिसमें एल्यूमिनियम 95% होता है, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 5% एंड Mn 5% होता है, राइट। सॉरी, मैग्नीशियम इसमें 0.5% होता है और Mn क्या होता है, कितना होता है, 5% होता है, राइट। एंड ड्यूरेलुमिन इज यूज्ड इन प्रेशर कुकर्स, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रेशर कुकर हो जाएगा, राइट। और प्लेन मॉडल्स हो जाएगा, प्लेन मोल्ड्स हो जाएगा, राइट। तो ये यहां पर जो है वी हैव स्टडीड मेटल्स, राइट। वी हैव स्टडीड मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है एलॉय का, एलॉइंग क्या होता है, राइट, कोरोसन क्या होता है, एलॉय क्या होता है, और डिफरेंट एलॉय को भी जो है हम पढ़ चुके हैं। सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन डेप्थ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।